Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to National Cert Cyber Watch webinar series. The National Cert, PK Cert, as you know, the Government of Pakistan initiative is organizing this Cyber Watch webinar series. Today we have our fourth session, and today we are excited to have Mr. Nadeem Ashraf with us. And Nadeem doesn't need any kind of an introduction. But let me give you a brief introduction of Nadeem so you can come up with the... Mr. Nadeem Ashraf is a distinguished cybersecurity professional with over 15 years of extensive experience in the field. With a proved track record of establishing and leading cybersecurity operations, he has made significant contributions across diverse organizations and industries in Pakistan and the Middle East. Mr. Nadeem holds a master's degree in Information and Communication System Security from the prestigious KTH Royal Institute of Technology in Sweden and is currently the Group Director of MSSP Operations at Pakistan Telecommunication Company Limited, PTCL. His previous roles including serving as a senior expert cybersecurity at Sehat Information Technology Services, Saudi Arabia. And he has several STEAM industry certifications like CISSP and ISO 27001 and etc. etc. So Mr. Nadeem expertise spans a wide range of cybersecurity domains with core areas of focus including security operations, SOC and incident response, vulnerability management, application security, infrastructure security, red teaming, and penetration testing. His dedication to advancing cybersecurity practices and his continuous pursuit of excellence have made him a respected leader and a valued contributor to the field. So I would like to welcome Nadeem to be a part of National Cert, PK Cert family. And कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Allah Shukr. Thank you very much, Imran. Thank you for the great introduction. Thank you very much. Thanks for your... Thank you for having me. Our pleasure, our pleasure. So Nadeem, ये हम सेशन जो है बायलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश उर्दू मिक्स, ताकि मैसेज पहुंचना चाहिए, मकसद पहुंचना चाहिए. And we are about to have 1 hour and 40 minutes around session. हम कोशिश करेंगे कि इसमें wrap up कर लें. Then we have a plan for a question and answer session as well. So over to you. Floor is open. Without any further wasting any further time, I would like to start the session. Please. Imran, मेरी screen visible है? Yeah, आपकी screen visible है बिल्कुल. अच्छा, ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि इस सेशन को बाइलिंगुअल रखने का जो पर्पस है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री, पाकिस्तानी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ नॉलेज शेयरिंग जो है वो इन अ बेटर वे में की जा सके. ठीक है, जो पहले सेशंस हुए हैं उसमें कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर दिस सेशन वी वांटेड टू टारगेट के पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन तक जो है वो नॉलेज शेयरिंग की जा सके. ठीक है. सो introduction already Imran has given introduction. I'll straight forward jump to the agenda. अच्छा, as defenders मेरा पे जो है वो काफ़ी मैं strongly believe करता हूँ कि as defenders we need to know attackers जो adversaries हैं उनके TTPs, ठीक है, जो मतलब adversaries के tactics हैं वो कैसे operations conduct करते हैं, वो हमारे लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. I spent almost 9 to 10 years working in the defensive area. ठीक है. और उसके बाद later on I moved to the offensive side. और उसकी रीज़न यही थी कि in my own experience मुझे वो एक गैप जो है ना वो फील होता था कि I have to have more understanding of the
जो अटैकर्स जो हैं, जो एडवर्सरीज हैं, एपीडी ग्रुप्स हैं, वो कैसे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, वो कैसे हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे बाईपास होते हैं, सो दैट वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स। ठीक, तो ये जो टॉपिक है वेबिनार का, फिशिंग स्पेसिफिकली फॉर क्रेडेंशियल स्टीलिंग, इसका कॉन्टेक्स्ट भी इसी तरह के वी हैव टू वी शुड नो, वी शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ के अटैकर्स किस तरह से फिशिंग जो है वो अटैक्स को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करते हैं। ठीक है, व्हाई एंड हाउ दे आर सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूटिंग फिशिंग अटैक। फिशिंग इवन टुडे फिशिंग जो है one of the top I would say कि अटैक वेक्टर है टू गेन इनिशियल एक्सेस। ऑल्दो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है इस पे कि बहुत सारे डिफेंसिव कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल इट इज़ सक्सेसफुल। ठीक, तो लेटर ऑन हम उसमें देखेंगे। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिशिंग वाया प्रॉक्सी। स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसको एडवर्सरी इन द मिडल अटैक भी कहते हैं। स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है क्रेडेंशियल स्टीलिंग से रिलेटेड जो अटैक्स होते हैं। Basic infrastructure, phishing for proxy, जो adversary in the middle attack है, basic phishing infrastructure क्या required है, और कैसे एक resilient, एक advanced, एक OPSEC उसको operationally secure infrastructure adversaries set up करते हैं with minimal cost। एक point ये मैं highlight करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसी वजह से फिशिंग अटैक्स है वो हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि विद मिनिमल कॉस्ट जो है वो एडवर्सरीज एक ऑपरेशनली सिक्योर फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स टूल्स और सर्विसेज अवेलेबल है। देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट के उसकी डिटेक्शंस, जो एडवर्सरी इन द मिडल अटैक है, इसकी डिटेक्शंस और मिटिगेशंस क्या क्या है, इसकी डिटेक्शंस एंड मिटिगेशंस। वी विल हैव सम लाइव डेमोस एज वेल, और एट द एंड फिर लास्ट में क्वेश्चन और आंसर सेशन होगा। अच्छा, एक बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत रेड टीम्स और ब्लू टीम्स दोनों से रिलेटेड है। ठीक, ब्लू टीम्स को भी इक्वली इक्विप्ड होना चाहिए एडवर्सरीज के टैक्टिक्स के साथ। ठीक है, बट इसका फोकस ये नहीं है कि इसको मलिशियस वे में यूज़ करें। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम इन जो एडवर्सरीज के टैक्टिक्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग गेन करें। ठीक है, और अपने आप को एक बेटर पोजीशन में लेके आए कि इन अटैक्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है और डिफेंड किया जाए। ऑल्दो प्रेजेंटेशन का जो थीम है उसका एक मेजर जो पोर्शन है वो ऑफेंसिव साइड से रिलेटेड है, बट अगेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रॉम डिफेंडर्स पर्सपेक्टिव से है। ठीक, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। लास्ट ईयर की जो ट्रेंड माइक्रो की रिपोर्ट है उसमें 46% ऑफ ऑल थ्रेट्स ब्लॉक्ड बाय ट्रेंड माइक्रो दे वर ईमेल रिलेटेड थ्रेट्स। ठीक है, और another report from egress, 90% of organizations they have fallen victim to phishing attacks in 2020। अगर आप ये ग्राफ देखें तो 2022 में जो नंबर्स थे फिशिंग अटैक्स के उसमें 46% ऑलमोस्ट एज पर ट्रेंड माइक्रो की जो रिपोर्ट है 46% की ग्रोथ है उसमें, इंक्रीज है उसमें, जो 2023 में डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, फिशिंग अटैक्स जो कि स्पेसिफिकली क्रेडेंशियल स्टीलिंग से रिलेटेड थे उसमें भी 17% ग्रोथ डिटेक्ट हुई इन 2023 विद नियरली 7 मिलियन डिटेक्शंस। ठीक है, क्राउड स्ट्राइक की जो रिपोर्ट है कि 80% ऑफ अटैक्स जो क्राउड स्ट्राइक ने इन्वेस्टिगेट किए दे वर इन वन वे और अनदर
उसमें क्रेडेंशियल स्टीलिंग, कंप्रोमाइज क्रेडेंशियल्स या एंटिटीज से जो थे वो इन्वॉल्व थे, उससे रिलेटेड थे, ठीक है। और सिमिलरली वेरिजॉन की भी एक जो रिपोर्ट है कि द यूज ऑफ स्टोलन क्रेडेंशियल्स, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे जो वेब एप्लीकेशन जो ब्रीच हुए हैं वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो उसमें भी क्रेडेंशियल स्टीलिंग जो था वो सबसे टॉप पे अटैक वेक्टर आता है, ठीक। तो ये सम स्टैट्स के हम आज ये टॉपिक क्यों डिस्कस करें, क्योंकि स्टिल वन ऑफ द मोस्ट जो है वो कॉमन अटैक वेक्टर है इनिशियल एक्सेस गेन करने का, फिशिंग है, ठीक है। लेकिन फ्रॉम एडवर्सरी पर्सपेक्टिव और फ्रॉम a red team perspective, we have a set of controls to deal with when executing phishing attacks. So it is not, although there is an increase always, but it is not that simple to execute a successful phishing engagement or a successful phishing attack. ठीक है, उसके रीजन क्या है कि we have to deal with a lot of security controls. Some of the examples are scanners, ठीक है। as soon as you, for example, phishing के लिए आपको बेसिक कंपोनेंट आपको एक डोमेन रजिस्टर करनी पड़ती है, ठीक। तो as soon as you register your domain, जो स्कैनर्स होंगे डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज जो वेंडर्स हैं जो स्कैनर्स उनके होस्टेड हैं अराउंड द ग्लोब, दे विल स्टार्ट स्कैनिंग योर डोमेन और जो आपने कंटेंट उस पर पोस्ट किया हुआ, ठीक है। उसके अलावा आपको सक्सेसफुल फिशिंग एग्जीक्यूट करने के लिए जो डोमेन रिक्वायर्ड है उसकी गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, ठीक है। वो इट मस्ट बी कन्विंसिंग, ठीक है। आपने फिशिंग में जो एडवर्सरीज, तो सबसे मेन जो ट्रिक है कि टारगेट को कन्विंस करना होता है कि टारगेट जो है वो लिंक को क्लिक करे और उसको फॉलो करे अटैक में थ्रू, ठीक है। देन वी हैव डीआरपी सॉल्यूशंस। डीआरपी सॉल्यूशंस जो है वो जो ब्रांड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, वो भी आपके ब्रांड से रिलेटेड अगर कोई डोमेन रजिस्टर होती है कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो भी उसको भी डील करना पड़ता है। देन वी हैव टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑब्वियसली ईमेल फिल्टरिंग, एंटी स्पैम है, एंटी फिशिंग सॉल्यूशंस हैं, यूआरएल फिल्टरिंग सॉल्यूशंस हैं, सैंड बॉक्सेस हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट एंड यूजर अवेयरनेस भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो यूजर्स को एजुकेट करने के लिए। सो attackers or red teamers have to deal with all these kind of different controls एक सक्सेसफुल फिशिंग कैंपेन को लॉन्च कर। इसी तरह जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूआरएल ब्राउज करते हैं, जो आपके ब्राउजर्स हैं, क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, एवरी यूआरएल इज रिपोर्टेड बैक टू माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ठीक है। तो वहाँ पे वो उसका एनालिसिस होता है एंड अगर ऑपरेशनली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप तक सेफ नहीं है, तो एज सून एज यू सेंड योर फर्स्ट फिशिंग ईमेल योर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बर्न, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम कोई भी इसको यूआरएल को विजिट करता है तो आई एम श्योर कि एवरीवन हैव सीन दिस पॉपअप के डिसेप्टिव साइट अगर आप कोई भी मलिशियस यूआरएल को विजिट करते हैं तो, ठीक है। adversary in the middle attack. Adversary in the middle attack, as I said, mainly this is focused towards the credential stealer, ठीक है। इसका जो कोर कंपोनेंट है वो प्रॉक्सी सर्वर होता है, ठीक है। अटैकर बेसिकली क्या करता है कि अटैकर्स प्रॉक्सी सर्वर होस्ट करते हैं और जो ट्रैफिक होती है वो टारगेट और जो एक्चुअल जो यूजर है और जो टारगेट वेबसाइट है उसके बीच में प्रॉक्सी हो रही है। तो यूजर को, जो एंड यूजर है, उसको एग्जैक्टली रेप्लिका नजर आता है टारगेट वेबसाइट का, ठीक है। वो कोई एक्चुअली क्लोन साइट नहीं होती, सारी की सारी जो ट्रैफिक HTTP पैकेट्स हैं वो सारे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू क्लाइंट के ब्राउजर और टारगेट वेबसाइट के थ्रू प्रॉक्सी हो रहे होते हैं, ठीक है।
इसका बेसिक फ्लो ये है कि जो टारगेट है वो यूआरएल पे क्लिक करेगा, वो यूआरएल होस्टेड है फॉर एग्जांपल किसी भी क्लाउड सर्विस को आप ले लें, AWS ले लें, एजोर ले लें, वहाँ पे आपका प्रॉक्सी टारगेट का प्रॉक्सी सर्वर होस्टेड है जो कि ट्रैफिक को प्रॉक्सी कर रहा है एक्चुअल जो टारगेट वेबसाइट है, ठीक है। यूज़र विल सी दी ओरिजिनल वेबसाइट, उसके बाद यूज़र क्रेडेंशियल एंटर करेगा और टारगेट वेबसाइट विल रिस्पॉन्ड, एंड जो नेक्स्ट स्टेप में अगर क्रेडेंशियल सक्सेसफुल है ऑब्वियसली वो टारगेट को एक्चुअल वेबसाइट नजर आएगी तो वो अपने रियल क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, MFA की स्क्रीन पॉपअप होगी, ठीक है। यूज़र MFA को एक्सेप्ट करेगा या अपना जो भी OTP टोकन है वो एंटर करेगा, ठीक है। और ये सारी की सारी जो ट्रैफिक है ये प्रॉक्सी हो रही होगी यूजिंग द प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो इस अटैक से इससे होता क्या है कि क्योंकि अटैकर इज सिटिंग इन द मिडल, तो आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन और MFA जब एक्सेप्ट करने के बाद या OTP इंटर करने के बाद जब ऑथेंटिकेशन के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो अटैकर के पास है वो टारगेट वेबसाइट जो है वो सेशन टोकन या सेशन कुकीज है वो शेयर करेगी, मतलब वो सेंड करेगी एक्चुअल क्लाइंट की तरफ, लेकिन वो क्लाइंट के पास क्लाइंट ब्राउजर में आने से पहले वो प्रॉक्सी सर्वर के पास, तो अटैकर है वो प्रॉक्सी सर्वर से सेशन टोकन्स को कैप्चर कर लेगा और उसके बाद ही जस्ट नीड्स टू यूजिंग दैट सेशन अटैकर जो है वो ब्राउजर में वो सेशन कुकी के थ्रू लॉग इन कर, ठीक। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर ईवल जिंक्स, इसमें इस सेशन में ईवल जिंक्स की एग्जांपल यूज की गई है। देयर आर अदर टूल्स एज वेल, ठीक है। बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी टूल्स हैं जो कि अटैकर्स के अपने एडवर्सरी ग्रुप्स के अपने बनाए हुए टूल्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल, लेकिन ईवल जिंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर दिस टाइप ऑफ अटैक। इट वाज रिलीज बाय कुबा ग्रेप्सी इन 2017 और उसके बाद से अब तक काफ़ी सारी इसमें एनहांसमेंट्स और फीचर्स आ चुके हैं। और मेन पर्पस इस टूल का यही है कि proxy the traffic between user and the target website, or at the end attacker will get hold of the credentials and session cookies. बेसिक फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रिक्वायर्ड है, ये उसके एक हाई लेवल डिटेल है क्या। अगर बिल्कुल हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वी नीड अ सर्वर इन क्लाउड जहाँ पे हम ईवल जिंक्स फॉर एग्जांपल AWS पे एक इंस्टेंस आप 3 tier इज इनफ फॉर दिस पर्पस। आप ईवल जिंक्स या कोई भी मैन इन द मिडल फ्रेमवर्क उसको होस्ट करें, सेटअप करें। यू नीड अ डोमेन जो कि टारगेट जो अटैक में यूज होगी, ठीक है। वो डोमेन आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ईवल जिंक्स के साथ बाइंड होगी, ठीक है। उसके अलावा आपको DNS रिकॉर्ड्स होस्ट करने और एक ईमेल, आपको ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। ईमेल सेंड करने के लिए भी बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल सर्विसेज भी हैं, पेड भी हैं। इसमें मेलगन है, सेंडग्रिड है, ये वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर सर्विसेज ईमेल की। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि एज एन अटैकर्स कभी भी जो है वो अपना ईमेल सर्वर बिल्ड करने में इस बात को फॉलो नहीं करते। इसकी रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी ईमेल जो है सक्सेसफुली लैंड करनी चाहिए टारगेट के मेल बॉक्स में। तो उसके लिए आपकी ईमेल सर्विस की रेपुटेशन ग्रीन होनी चाहिए, अच्छी होनी, रेपुटेशन गुड होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए मेल गन या सेंडग्रिड या इस तरह की जो पॉपुलर ईमेल सर्विसेज हैं वो यूज़ की जा सकती हैं ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है, और टारगेट तक सक्सेसफुली फिशिंग ईमेल डिलीवर हो। तो बेसिक वर्कफ्लो क्या है, वी हैव अ प्रॉक्सी सर्वर ईवल जिंक्स इन AWS सिंगल VM, ठीक है। अटैकर ईमेल सेंड करेगा यूजिंग मेलगन और सेंडग्रिड और एनी ऑफ द अदर ईमेल सर्विस, ठीक है। ईमेल विल कंटेन ऑब्वियसली
उसमें एक उसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा, प्री टेक्स्ट होगा, जो कि टारगेट को ड्राइव करेगी कि वो फिशिंग, उसमें जो फिशिंग लिंक होगा उस पर वो क्लिक करें और उसको उसमें अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करें और एज एन अटैकर हम उसके क्रेडेंशियल्स को एक्सेस कर लें। ठीक, तो जैसे ही टारगेट के पास ईमेल लैंड होगी, उसको अगर उस पर लिंक पे क्लिक करता है तो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए, सेशन के लिए जो मैंने टारगेट वेबसाइट ली हुई है, जो एग्जांपल यूज़ की है वो ऑफिस 365 की है, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सर्विस। ठीक है, बहुत सारी इंटरप्राइजेज यूज़ की जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा टारगेट की जाती है इसमें फिशिंग इस टाइप के अटैक में। ठीक, तो विक्टिम जो है वो उसको लिंक को फॉलो करेगा और प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअल जो वेबसाइट है ऑफिस 365 की, उसके साथ ट्रैफिक को प्रॉक्सी करेगा और टारगेट के पास एक्चुअल वेबसाइट नजर आएगी। ठीक है, अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, जैसे क्रेडेंशियल एंटर करेगा तो क्रेडेंशियल जो है वो प्रॉक्सी सर्वर कैप्चर कर लेगा। ठीक है, आफ्टर उसके बाद क्या होगा, क्रेडेंशियल्स जैसे एंटर होंगे तो ऑफिस 365 पे अगर MFA इनेबल्ड है, क्योंकि मोस्टली इनेबल होती है, तो विक्टिम के पास MFA की रिक्वेस्ट आएगी, विक्टिम अपने मोबाइल से उसको लेट्स से पुश नोटिफिकेशन आती है, वो उसको अप्रूव करता है। ठीक है, तो उसके बाद सेशन कुकी जो है वो ऑफिस 365 से विक्टिम को, जो टारगेट जो एंड यूजर है उसकी तरफ उसको सेशन कुकी सेंड की जाती है। ठीक है, तो वो सेशन कुकी भी ईवल जिंक्स के थ्रू होके जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम हमारे पास जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सेशन कुकी हम ग्रैब कर लेंगे टारगेट, और इफेक्टिवली आपका MFA बाईपास हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं और फिशिंग इज नॉट इजी to execute successfully having all these security controls. तो अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी के आपकी as soon as you send your first phishing email, your domain and your infrastructure will be detected as malicious. ठीक है, उसकी रीजंस भी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और your infrastructure will be burnt. तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज अटैकर्स यूज करते हैं? ठीक है, या हमें रेड टीम, फ्रॉम रेड टीम पर्सपेक्टिव किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, क्या से कंपोनेंट्स हैं टू टू सेट अप रेजिलिएंट फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें जो एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, एडिशनल उसमें कंपोनेंट्स ये है कि हमने बेसिकली अचीव ये करना है। मैं एक स्लाइड नेक्स्ट पे पर जाता हूँ, फिर उस पर वापस आता हूँ कि इसमें ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम स्कैनर्स एंड फ्रॉम ऑल दी अदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एक तो हमारे जो जो डोमेन है, फिशिंग URL है, ये स्कैनर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी VMs हैं जहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर को होस्ट किया गया, वो VMs उनके एक्चुअल IP एड्रेसेस जो है वो हाइड होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो टूलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईवल जिंक्स जो जो मेन कंपोनेंट है, या कोई भी AITM हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके, और अगर हम फॉर एग्जांपल कैंपेन का कोई कैंपेन के लिए कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे गोफिश है जो कि आपकी फिशिंग कैंपेन्स के लिए पॉपुलर टूल है, यूज़ कर उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो इनके नॉन IOCs हैं इन टूल्स के, तो ये नॉन IOCs हमने इसमें से रिमूव करने हैं ताकि जो स्कैनर्स हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूजिंग दीज नॉन IOCs डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि सिंपली कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है। एक तो हमें डायरेक्टली अपना ईवल जिंक सर्वर है या मैन इन द मिडल प्रॉक्सी सर्वर है, उसको डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना। तो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टेक्निक वो ये है कि इसको आप किसी भी और वेब सर्वर के बिहाइंड इसको पब्लिश करते हैं। और ये सेम जो है वो जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एज अ डिफेंडर भी मैं, क्योंकि बहुत सारे फिशिंग अटैक से रिलेटेड इंसिडेंट्स को डील किया है, तो मेरे एक्सपीरियंस में from my experience I have seen कि adversaries इन्हीं components को mostly use की, उसी चीज़ को मैंने replicate किया हुआ है। So you use a Apache server for example और Nginx server, एक थर्ड पार्टी वेब सर्वर आप
उसमें ऐड करते हो और उसके बिहाइंड पे आप ईमेल देख सकते हो, जो यू नो डायरेक्टली एक्सपोज योर प्रॉक्सी सर्विस टू इंटरनेट, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर उसकी सिक्योरिटी के लिए क्लाउड फ्लेयर की सर्विस काफ़ी कॉमनली अटैकर्स यूज़ करते हैं। तो आपकी फर्दर इसमें अच्छा क्लाउड फ्लेयर में बहुत सारे आपको एनहांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे वैप है, so you put your proxy service behind is an additional security layer behind Cloudflare, ठीक है। तो इसमें जो है वो फ्लो क्या बनेगा कि यूजिंग गोफिश आप फिशिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, ईमेल विल बी सेंट थ्रू मेलगन, जो भी आप ईमेल सर्विस यूज कर रहे हो। नाउ विक्टिम के पास जब लिंक आएगा, लिंक जब वो क्लिक करेगा तो जो ट्रैफिक है वो पास होगी आप क्लाउड फ्लेयर के थ्रू, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो फॉर एग्जांपल आपके स्कैनर्स हैं या बॉट्स हैं डिफरेंट, उससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। और देन नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि अपाची पे ट्रैफिक लैंड करेगी और उसके बाद वो ईविल जिंक्स पे रीडायरेक्ट हो, तो वहाँ से फिर जो ट्रैफिक है वो फर्दर जाएगी टू जो भी टारगेट वेबसाइट, और इसी तरह बाकी फ्लो सेम है जैसे लास्ट उसमें स्लाइड, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि स्टिल बहुत ही इसमें मिनिमल कॉस्ट है, ठीक है, इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। वी जस्ट हैव टू परचेज अ डोमेन, दैट्स द ओनली कॉस्ट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड टू बी ऑनेस्ट। या फिर अगर ये कि आपको ईमेल बहुत सारे जो टारगेट यूजर्स हैं उनको सेंड करनी है, तो फिर आपको मे बी पेड सर्विस यूज़ करनी पड़े ईमेल के लिए। अदरवाइज किसी भी क्लाउड सर्विस पे आप एक सिंगल वीएम पे, फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस पे एक सिंगल वीएम पे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्या होगा कि वी विल हैव अपाची सर्वर ऑन द फ्रंट, और उसके बिहाइंड वी विल सेट अप आवर गोफिश एंड आवर evil jinx server, ठीक। एंड दिस वीएम, all the traffic to and from this VM will be passing through Cloudflare, ठीक है। नेक्स्ट फिशिंग के लिए वन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कहूँगा कि कॉन्टेक्स्ट एंड प्रीटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपने विक्टिम को कन्विंस करना होता है अटैकर्स में, ठीक है, कि वो फिशिंग लिंक पे क्लिक करे और उसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करे। तो सो एज अटैकर हम जो है ना वो क्रेडेंशियल्स जो है वो स्टील कर सके अटैकर्स, ठीक। तो इसके लिए उसको इसमें कॉन्टेक्स्ट और प्रीटेक्स्ट एक सबसे पहले अटैकर्स डिजाइन करते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट और प्रीटेक्स्ट से अगेंस्ट जो है वो डोमेन रजिस्टर की जाती है यूजुअली, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट या प्रीटेक्स्ट क्या है इसमें, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि अवार्ड्स, बहुत सारी कंपनीज में फॉर एग्जांपल अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, और वो फिर एचआर की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल्स आती हैं कि जी ये अवार्ड सेरेमनी है, उसकी जो भी डिटेल्स है अकॉर्डिंगली वो शेयर की जाती हैं। इसी तरह सर्वेज बहुत कॉमन है, ठीक है। अ, इस तरह इसके अलावा अनदर एग्जांपल ये है कि डिस्काउंट वाउचर्स जो है वो बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ये सेम जो चीज़ें हैं ना, ये सेम कॉन्टेक्स्ट, ये एडवर्सरीज इसको यूटिलाइज करते हैं टू जो फिशिंग अटैक्स में, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल, पहली एग्जांपल इसमें देखते हैं कॉन्टेक्स्ट और प्रीटेक्स्ट की, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अवार्ड है, या फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपडेट है, सर्विस है, डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रीटेक्स्ट को डिफाइन करना। प्रीटेक्स्ट जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही विक्टिम जो है वो विल फॉल इनटू द अटैक, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, एनुअल एम्प्लॉय अवार्ड सेरेमनी, ठीक है। आप एक ईमेल क्राफ्ट करें जो कि बज़ाहिर एचआर की टीम से आ रही है, ठीक है, और उसमें अवार्ड सेरेमनी की डिटेल्स हैं, और उसके बाद जैसा आप उसको विक्टिम को आप कन्विंस कर रहे हैं कि जी आप अपनी अटेंडेंस को कंफर्म करें बाय यूजिंग दिस लिंक, ठीक है। और इस लिंक के बिहाइंड हमारा जो है वो फिशिंग की वेबसाइट है, जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है,
ये एज सुन एज जो विक्टिम है वो उस पर क्लिक करेगा तो इट विल टेक हिम टू द फिशिंग पेज। ठीक, तो ये एक कन्विंसिंग एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीटेक्स्ट है। अच्छा, एक और कॉमन इसमें काफ़ी पॉपुलर इसमें जो टूल है वो चैट जीपीटी भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगेन आपका कॉन्टेक्स्ट और प्रीटेक्स्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही विक्टिम्स जो है वो अटैक उसका एक चांसेस है कि वो हमारे फिशिंग लिंक पे क्लिक करेंगे और फिशिंग जो अटैक है वो सक्सेसफुल होगा। तो सिंपली यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर दिस पर्पज एज वेल। आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में इसको जाएं और सिंपली क्वेरी करेंगे जी आई नीड राइट एन ईमेल फॉर एग्जांपल डिस्काउंट कूपन्स। ये एग्जांपल मैंने यूज़ किया हुआ जो कि चैट जीपीटी से ड्राफ्ट की हुई ईमेल है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, बट जस्ट आपको एक मेन एग्जांपल ही देनी थी कि किस तरह की कॉन्टेक्स्ट और प्रीटेक्स्ट है वो एडवर्सरीज यूज करते हैं विक्टिम को कन्विंस करने के लिए फिशिंग कैंपेन्स में। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं जी हमारा जो मेन कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट आई वुड से ईवल जिंक्स है इस अटैक का। ठीक है, जो प्रॉक्सी सर्वर है। अच्छा, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ईवल जिंक्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि credential stealing में ईवल जिंक्स इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, आई वुड से मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क क्योंकि इस टाइप के अटैक के लिए यूज हो जाता है। सो एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल मोस्ट ऑफ अस वुड हैव सम आइडिया ऑफ ईवल जिंक्स। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी कि जो हम टूल यूज करेंगे इस तरह के फिशिंग कैंपेन्स में, क्योंकि वो ओपन सोर्स टूल्स हैं तो सिक्योरिटी जो वेंडर्स हैं वो उसको एनालाइज करेंगे और उनके वहाँ से जो नोन आईओसीज है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने डिटेक्शन टूल्स में उनको यूज़ करेंगे। तो ईवल जिंक्स से कौन से नोन आईओसीज हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईवल जिंक्स में जो इसका डेवलपर है उसने एक हेडर उसमें रखा हुआ है एक्स ईवल जिंक्स, जिसमें बेसिकली जो वैल्यू होती है वो आपके जो हमारी फिशिंग डोमेन है वो उसकी वैल्यू उसमें उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो ट्रैफिक है एक्चुअली वो क्लाइंट जो एंड यूजर है विक्टिम है उसके ब्राउजर से प्रॉक्सी हो रही होती है टू द टारगेट वेबसाइट यूजिंग ईवल जिंक्स फॉर एग्जांपल। ठीक, तो जब टारगेट वेबसाइट पे वो कोई जो भी रिक्वेस्ट टू एंड फ्रॉम विक्टिम ब्राउजर होगी वो थ्रू ईवल जिंक्स सर्वर होगी, और जैसी रिक्वेस्ट ईवल जिंक्स से टारगेट वेबसाइट पे जाएगी तो इसमें जो रिक्वेस्ट होगी उसमें ईवल जिंक्स अपना एक्स ईवल जिंक्स अपना हेडर है उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो वन ऑफ दी वेरी मतलब बहुत ही इजी टेक्निक है फिर ये फ्रॉम डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको जस्ट यू हैव टू जो आपके जो टारगेट वेबसाइट है उसके आपको एक्सेस वेब सर्वर के एक्सेस लॉग्स हैं वो फॉर एग्जांपल व्यू करने हैं, रिव्यू करने हैं, और वहाँ पे आप रूल्स डिटेक्शन रूल्स बिल्ड कर सकते हो कि अगर आपको जो रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट वहाँ पे आ रही है, एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे एक्स डैश ईवल जिंक्स का हेडर किसी भी रिक्वेस्ट में आता है, तो वेरी इजी टू डिटेक्ट। तो इसको कैसे अटैकर्स बाईपास करते हैं, जस्ट जो इसकी जो कोर HTTP की फाइल है उसमें जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड हमें रिमूव करना है और ये जो हेडर है इसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो जब फिशिंग कैंपेन्स आप एज अ रेड टीमर फॉर एग्जांपल आप फिशिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो और यूजिंग ईवल जिंक्स कर रहे हो, तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड के यूजिंग बाय कमेंटिंग आउट दीज लाइंस ऑफ कोड जो इसका वो ईवल जिंक्स का नोन आईओसी वो रिमूव करना। ठीक है, नेक्स्ट as I mentioned कि evil jinx will not be exposed directly to the internet। ठीक है, इसको हम रखेंगे behind for example Apache server। तो 443 जो पोर्ट HTTPS उस पर लिसन कर रहा होगा आपका Apache server और Apache से हम ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहे होंगे
to another port where Evil Jinx will be listening. For example, in this example, Evil Jinx is running on port 8443, ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट पे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा. तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं फ्रॉम Evil Jinx पर्सपेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो अपाची सर्वर है. ठीक है, अगेन आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि अपाची सर्वर को कैसे बिल्ड करना है. ठीक है, बट यू जस्ट नीड टू सेट अप अपाची सर्वर. ठीक है, और उसके साथ उसके फ्यू मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, प्रॉक्सी, एसएसएल एंड यूआरएल रीराइट. ठीक है, यू जस्ट नीड टू होस्ट सिंपल वेब पेज, होम पेज. अच्छा, इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है. अगेन हमारा जो पर्पज है या अटैकर्स का पर्पज क्या होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंसिंग बनाना है आपको. ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि जो एक्चुअल आपकी जो टारगेट वेबसाइट है उसको क्लोन करके भी आप होम पेज पर डिस्प्ले कर सकते हो. It just needs one line of code. ठीक है, या फिर we can just simply put a maintenance page. अच्छा, अपाची के केस में जो हमारी जो मेन पॉइंट है अपाची सेटअप करने में वो ये है कि we need to generate वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट. ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या है जब हम ये लेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जैसी Evil Jinx पे आप अपनी डोमेन को कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करते हैं तो Evil Jinx व्हाट इट विल डू, ऑटोमेटिकली जो आपके जो यूआरएल्स होंगे जो आप डिफाइन करोगे उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट जनरेट करेगा यूजिंग लेट्स एनक्रिप्ट. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उसका प्रोसीजर है. तो अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि एज सून एज आप सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है, इट विल बी लिस्टेड इन TLS ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट. ठीक है, और जैसे TLS ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर होगा, डोमेन आपकी विजिबल होगी, इट विल बी विजिबल टू ऑल पब्लिक स्कैनिंग टूल्स. ठीक है, तो वन ऑफ दी ये काफ़ी मेन रीज़न है इसमें कि जैसे ही आप अपनी डोमेन को रजिस्टर कॉन्फ़िगर करते हो Evil Jinx में या प्रॉक्सी टूल में और सर्टिफिकेट आपने जनरेट किए तो इट विल बी विजिबल टू ऑल पब्लिक स्कैनर्स और वो आपकी यूआरएल्स को स्कैन करेंगे और दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस पे कोई मलिशियस आपने कोई टूल्स आपने होस्ट नहीं किए. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज सिंपल के we will use Evil Jinx in developer mode. ठीक है, डेवलपर मोड में क्या होता है कि सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होते. तो स्टिल वी नीड टू हैव सर्टिफिकेट. ठीक है, तो अपाची सर्वर में हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट पहले जनरेट करेंगे और अपाची सर्वर के साथ इसको वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट को जनरेट को कॉन्फ़िगर कर देंगे. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट का कि जो डोमेन हम यूज़ करेंगे सर्टिफिकेट विल बी स्टैटिक डॉट फॉर एग्जांपल योर डोमेन नेम. ठीक है, तो एज सून एज इट विल बी लिस्टेड इन दी TLS ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट तो स्कैनर्स को एक्चुअल जो डोमेन है, फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल डोमेन नेम है जो लेट्स से कोई भी www.xyz.google.com तो ये विजिबल नहीं होगा बल्कि जस्ट static.google.com विजिबल होगा. तो स्कैनर्स विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल हमारी डोमेन कौन सी है जो जिस पे फिशिंग लिंक हमारा होस्ट किया. ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, सोल्यूशन हमें क्लियर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो Evil Jinx because it is a open source tool so we have some kind of limitations. ठीक है, अब SSL जो वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट है इसको जनरेट करने के लिए हमारे पास DNS सर्विस होना ज़रूरी है जहाँ पे बेसिकली जैसे आप वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करते हो यूजिंग फॉर एग्जांपल सर्टबॉट तो आपको एक चैलेंज रिस्पांस का एक प्रोसीजर होता है. जैसे रिक्वेस्ट जाएगी तो रिस्पांस में आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल मिलेगा जो कि आपने अपने DNS सर्वर में उस एज अ TXT रिकॉर्ड को पब्लिश करना होगा.
टू प्रूव के ये जो डोमेन है जिसके अगेंस्ट आप वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहे हो वो डोमेन यू आर द ओनर ऑफ दैट डोमेन, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अच्छा कुछ है जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेम चीप है, गोरेडी है, इसमें से कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको ये अलाउ करते हैं कि आप TXT रिकॉर्ड्स और कुछ और DNS रिकॉर्ड्स आप खुद से मैनेज कर सकते हो, बट देयर आर सम अदर होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो आपको ये अलाउ नहीं करती, या उनकी पेड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ईवल जिंक्स में भी ईवल जिंक्स रन एज अ फुल फ्लैज DNS सर्वर, ठीक है, जो आप डोमेन अपनी कॉन्फ़िगर करते हो, वो उसके रिकॉर्ड्स ईवल जिंक्स लोकली अपने पास मैनेज करता है। बट ईवल जिंक्स का प्रॉब्लम ये है कि ईवल जिंक्स आपको कोई इंटरफेस नहीं देता कि आपने DNS रिकॉर्ड्स कैसे आप उसको आप खुद से मैनुअली उसमें मेंटेन कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कम्युनिटी एडिशन की लिमिटेशन है, लेकिन जो इसका प्रो वर्जन है उसमें ये चीज़ आपको ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका वर्कअराउंड है, इसका वर्कअराउंड सिंपली ये है कि जो एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नेम सर्वर डॉट को, इसमें आप बेसिक जो फंक्शनलिटी है DNS रिकॉर्ड्स की है वो ये फाइल हैंडल करती है। तो बेसिकली सिंपली आपने क्या करना है कि एक YAML फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है इन सेम डायरेक्टरी वेयर ईवल जिंक्स इज रनिंग, ठीक है। और उस YAML फाइल में आपका वो TXT जो DNS रिकॉर्ड है वो आप उसमें ऐड करोगे, और इस नेम सर्वर डॉट गो फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी टू प्रोसेस दैट YAML। अब ये जो वर्क अराउंड है, जो पैच है, इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो ये लिंक पे इस URL पे अवेलेबल है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि हम सर्टबॉट के थ्रू अपने डोमेन के अगेंस्ट सर्टिफिकेट वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कमांड से, तो ये रिस्पांस में ये चैलेंज आएगा लेट्स एनक्रिप्ट की तरफ से फॉर एग्जांपल, और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम अपनी जो YAML फाइल बनाएंगे उस YAML फाइल में एज अ TXT रिकॉर्ड उसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ईवल जिंक्स को डेवलपर मोड में रन करें। डेवलपर मोड में रन करने का पर्पज ये है कि ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट उसके जनरेटिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू मैनेज आवर सर्टिफिकेट्स आवरसेल्फ, ठीक है। तो डेवलपर मोड में रन करेंगे, और जैसे ही ईवल जिंक्स रन होगा तो इस YAML फाइल को वो रीड करेगा और इस TXT DNS रिकॉर्ड को अपने पास DNS सर्वर में वो ऐड कर लेगा, ठीक है। वंस दिस इज डन सक्सेसफुली, ठीक है, आप सिंपली इंटर करोगे और आपके पास जो पब्लिक और प्राइवेट की पेयर्स जो है वो सर्टिफिकेट के वो आपके आ जाएंगे, और ये सर्टिफिकेट के जो की पेयर्स हैं देन यू विल डिफाइन देम इन अपाची, जो भी अपाची की कॉन्फ़िग फाइल होगी वहाँ पे आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसमें अपाची में मेनली, कि हमने उसको अपाची को इस तरह से सेटअप करना है कि हमने वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट जनरेट करने और अपाची के साथ इनको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करना। नेक्स्ट है जी क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर में हम क्या कर रहे होंगे, क्लाउडफ्लेयर बेसिकली हम जो अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्लाउडफ्लेयर की सर्विस यूज़ करेंगे। इससे जो एडवांटेजेस हमें मिलेंगे वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, एक मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि एक वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टेक्निक जो एडवर्सरीज यूज़ करते हैं वो ये है कि जो स्पेशली इन केस ऑफ फिशिंग एंगेजमेंट्स, उसमें यह है कि जो आपकी फिशिंग जो आपका डोमेन है, जो URL है, इट शुड नॉट बी पब्लिकली एक्सेसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। शुड ओनली बी एक्सेसिबल जहाँ पे जिस जियो लोकेशन पे आपका जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड्स यू फ्री WAF सर्विस, ठीक है। तो इसकी फ्री सर्विस है, उसमें भी एक बेसिक WAF की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। तो एक तो हम WAF के थ्रू उसको जियो फेंस करेंगे ताकि सिर्फ जो टारगेट कंट्री है वहीं पे एक्सेसिबल हो। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो स्कैनर्स होंगे या बॉट्स होंगे जो यूआरएल्स को स्कैन कर रहे हैं टू डिटेक्ट कि इस पे कोई मलिशियस आपके टूल्स होस्ट तो नहीं है या कोई फिशिंग डोमेन तो नहीं है,
तो वो चीज़ें वो स्कैनर्स जो हैं वो we will be able to prevent those scanners from scanning our phishing website, ठीक है। और सेकंड इसमें जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जब क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आपकी वेबसाइट जो फिशिंग साइट है वो होस्ट होगी, तो जो आपकी वीएम है जो क्लाउड में है उसका एक्चुअल आईपी एड्रेस एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। जो एज एज मतलब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लेट से आइडेंटिफाई हो जाता है सॉक टीम लेट से उसको उनको सस्पिशियस लगता है, अगर लेट से उस यूआरएल को वो रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ पे होस्टेड है, तो वी विल सी क्लाउडफ्लेयर। अब इसमें ये कि क्लाउडफ्लेयर मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो क्लाउडफ्लेयर पे चल रही होती हैं पब्लिक सर्विसेज, तो एंटरप्राइजेस यूजुअली क्लाउडफ्लेयर पे ब्लॉक नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी जो कंपोनेंट्स है डिफरेंट, ये हम लाइव डेमोस में इनको आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सेटअप होकर कंबाइन करके किस तरह से ये यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, क्लाउडफ्लेयर सेटअप करने जो है वो इनेबल करने से पहले सबसे पहले हमें EvilJinx पे डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। EvilJinx की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे उसको सिक्योर करना है। तो फॉर एग्जांपल इस डेमो के लिए मैंने जो मेरी डोमेन मैंने रजिस्टर की है ट्रस्टेड क्लाउड 365.cloud, दैट्स इट। तो ये क्लाउड EvilJinx की कॉन्फ़िगरेशन में मैं इस डोमेन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और EvilJinx में एक कॉन्सेप्ट होता है फिशलेट्स का। फिशलेट बेसिकली जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है, जैसे इस केस में ऑफिस 365 है, तो उसमें उसके MFA को बाईपास करने के लिए आपको जो सेशन बेसिकली सेशन को स्टील करने के लिए कौन सी सेशन कुकीज को हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो फिशलेट्स में बेसिकली उस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इस टारगेट वेबसाइट के लिए हमें कौन कौन सी सेशन कुकीज रिक्वायर्ड है। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, आपको बहुत सारी जो पॉपुलर सर्विसेज हैं, ईमेल सर्विसेज हैं या पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, उनके फिशलेट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। और अगर आपको फर्दर उस पर चाहिए तो EvilJinx की जो है वो इसका एक ट्रेनिंग भी इसकी अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेसिक सेटअप करना है EvilJinx का। EvilJinx का उस पर हमने अपने डोमेन को कॉन्फ़िगर कर दिया, अपना ऑफिस 365 का जो फिशलेट है वो कॉन्फ़िगर कर दिया, और हमारे पास एक फिशिंग यूआरएल आ जाएगा। उसके बाद वंस वी आर हमारे पास बेसिक EvilJinx की कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे क्लाउडफ्लेयर पे, उसको अपनी डोमेन को ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है। क्लाउडफ्लेयर पे अगेन ये फ्री सर्विस है, जो इसका मतलब फ्री सर्विस इज इनफ फॉर अस, वी डोंट हैव टू गो फॉर पेड सर्विस, ठीक है। तो सिंपली आप क्लाउडफ्लेयर पे लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज में आपको डोमेन को ऐड करने की जो है वो आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सिंपली गो टू योर डैशबोर्ड, आपके डोमेन को इसमें डिफाइन करते, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव ट्रस्टेड क्लाउड 365.cloud। सिंपली इसको कंटिन्यू करें और उसको आप फॉलो करें प्रोसीजर को, तो वेरी सिंपल 3 to 4 स्टेप्स में आपकी डोमेन जो है वो ऐड हो जाती है। अच्छा, नाउ क्लाउडफ्लेयर जो है वो आपके सारे के सारे जो DNS रिकॉर्ड्स हैं जो फिशिंग वेबसाइट के होंगे वो सारे के सारे क्लाउडफ्लेयर मैनेज करेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स भी मैनेज करेगा क्लाउडफ्लेयर, ठीक। ऑल्दो इनिशियली हमने जो DNS रिकॉर्ड्स हैं वो EvilJinx को यूज़ किया, ठीक है, जहाँ पे बेसिक हम जो इनिशियल DNS रिकॉर्ड्स है वो लेकिन EvilJinx से सारे के सारे जो DNS रिकॉर्ड्स है वो क्लाउडफ्लेयर वो फेच करेगा ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और फिर इसमें जो भी चेंजेस अगर हमने कोई करनी है रिक्वायर्ड है तो वो हम इसी की क्लाउडफ्लेयर की DNS सर्विस को यूज़ करें। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमारी जो फिशिंग डोमेन है वो हम ऑनबोर्ड कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर पे, तो सबसे पहले इसमें ये करना, अभी तक हम EvilJinx सर्वर को इसको हम रनिंग कंडीशन में नहीं है, उसमें इसको रन नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हम जो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें ताकि हम स्कैनर्स और बॉट्स और जो डिफरेंट अदर टूल्स हैं उनको हम ब्लॉक कर लें, और फिर उसके बाद हम अपना जो प्रॉक्सी सर्वर है उसको रन करें, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर में एक फीचर होता है अंडर अटैक मोड। तो
as soon as you onboard you register your domain with Cloudflare, सबसे पहले इस अंडर अटैक मोड को इनेबल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट इस डोमेन तक इस यूआरएल तक आएगी, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने से पहले Cloudflare will present a JavaScript challenge। ठीक, तो बहुत सारे जो स्कैनर्स हैं और जो बॉट्स हैं वो यहीं पर रुकेंगे, बट वी विल नॉट कीप इट इनेबल्ड। ठीक है, ये जस्ट इनिशियली हमें उसको बिफोर वी इनेबल अदर फीचर्स ऑफ Cloudflare, we are using this as an initial security measure to stop scanners and other tools। ठीक है, तो इनिशियली आपने ये कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप एज ए सेट के उसको यूजिंग वेब सर्विस आप जियो फेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने जो टारगेट कंट्री है उसको डिफाइन कर दिया। सिंपल, बहुत सिंपल, एक सिंपली एक रूल क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें आप सिर्फ अलाउ कर रहे हैं कि अगर टारगेट जो सोर्स कंट्री है वो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, तो सिर्फ यहीं से रिक्वेस्ट जो है वो अलाउ करें और बाकी सारी रिक्वेस्ट को डिलीट करें। तो इससे आप मेजर जो है वो अटैक वेक्टर आपने लेट्स से आपके डीआरपी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा कि जो डीआरपी सॉल्यूशंस हैं, अब जितने भी इस तरह के सॉल्यूशंस हैं, दे आर नॉट होस्टेड इन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। और ठीक है, इनके मोस्टली क्लाउड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इनके स्कैनर्स होस्टेड है। ठीक है, और इसी तरह बाकी जो सिक्योरिटी वेंडर्स हैं मोस्टली their scanners are also hosted in different, for example, locations in around the globe. So we are limiting the attack surface। ठीक है, कि सिर्फ उसको रिस्ट्रिक्ट करें जो जहाँ पे टारगेट लोकेटेड है। नेक्स्ट, Cloudflare provides bot protection। Again, this is free of cost। It does not require any paid subscription। ठीक है, तो जियो फेंसिंग प्लस बॉट प्रोटेक्शन, ये जो दो मेन फीचर्स हैं, इससे आपके मेजॉरिटी ऑफ स्कैनिंग टूल्स और जो स्कैनर्स हैं ये यहीं पे इनकी ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, and आप जो फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इट विल बी सिक्योर फ्रॉम दीज टूल्स। ठीक है, अच्छा, जब आपकी वैफ इनेबल होगी है और बॉट प्रोटेक्शन इनेबल होगी है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमने इनिशियल उसमें अंडर अटैक मोड इनेबल किया था, अब इसको हम डिसेबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसको इनेबल रखेंगे तो जो एक्चुअल विक्टिम होगा वो भी जब वेबसाइट को इस यूआरएल को, फिशिंग यूआरएल को जब विजिट करेगा तो उसको भी जावास्क्रिप्ट का चैलेंज आएगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वी हैव टू डिसेबल इट वंस वी इनेबल वैफ एंड बॉट प्रोटेक्शन फीचर्स। ठीक है, एक इसमें लास्ट बिफोर कंप्लीटिंग योर कॉन्फ़िगरेशन इन Cloudflare, एक लास्ट इसमें जो चेंज करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन में, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप ऑनबोर्ड करोगे अपनी डोमेन को इस पे, तो जो इसमें इंक्रिप्शन का मोड है वो इसमें फ्लेक्सिबल इंक्रिप्शन का मोड जो है वो Cloudflare उसको कर देता है। तो ये हमें चेंज करना है, जस्ट उसको चेंज करना है फुल पे। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो जो फिशिंग डोमेन है वो एक्सेसिबल हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें Cloudflare में है, ये है कि Cloudflare जो फ्री सर्विस है वो जस्ट आपकी जो मेन डोमेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रस्टेड क्लाउड, और जो आपका वन लेवल ऑफ सब डोमेन है, जैसे एग्जांपल है कि webmail.trustedcloud365.cloud, जस्ट इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो इसके सर्टिफिकेट को मैनेज करेगा। ठीक है, और इसी के डीएनएस रिकॉर्ड आपको जो है वो मैनेज करेगा। लेकिन अगर आपका फिशिंग जो ल्योर है वो सेकंड लेवल ऑफ सब डोमेन उसमें आप यूज कर रहे हो, जैसे इन दिस एग्जांपल वी हैव login.webmail.trustedcloud365.cloud, तो इस केस में आपको जो सर्टिफिकेट्स मैनेज करने के लिए आपको फिर ये टोटल टीएलएस का फीचर इनेबल करना पड़ता है, जो कि उसकी एक कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सो इसलिए जो है मोस्टली हम उसको जो फिशिंग कैंपेन होगी उसको जो हम फिशिंग यूआरएल यूज करेंगे मोस्टली वो वन लेवल ऑफ सब डोमेन तक उसको डिजाइन करना चाहिए, वो इनफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईमेल सर्विस के लिए दो मेन कंपोनेंट्स है। एक गोफिश है जो कि फ्रेमवर्क है बेसिकली टू लॉन्च द कैंपेन एंड टू ट्रैक योर कैंपेन। ठीक है,
इस सेशन में अच्छा गोफिश बेसिकली सेपरेट एक कंपोनेंट है क्योंकि तो इसकी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है ईवल जिंक्स के साथ, लेकिन रिसेंटली ईवल जिंक्स जो डेवलपर है उसने इसका एक्सपोर्ट वर्जन उसने पब्लिश किया है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है ईवल जिंक्स के साथ। तो इसमें भी गोफिश में हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने की ज़रूरत, जस्ट सिंपली डाउनलोड गोफिश फ्रॉम तो ईवल जिंक्स का अपनी जो रिपोजिटरी है वहीं से सिंपली डाउनलोड करें, ठीक है, और जस्ट टू लाइंस ऑफ कोड से आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा गोफिश को भी आपको पब्लिश करना है बिहाइंड योर अपाची सर्वर, लेकिन उसको क्योंकि गोफिश के अपने IOCs हैं, तो यू शुड नॉट एक्सपोज गोफिश डायरेक्टली टू इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें एक कंट्रोल हम दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं अचीव। एक तो ये कि आप इसको पब्लिश करें बिहाइंड अपाची सर्वर, ठीक है। दूसरा ये है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट करें जस्ट फॉर योर IP। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि गोफिश का जो एडमिन पैनल है उसको AWS की, अगर आप AWS यूज़ करें अपनी VM को होस्ट करने के लिए, तो AWS की जो बिल्ट इन फायरवॉल है सिंपली वहाँ पे एक रूल ऐड करें कि जो आपका IP है जस्ट उसी IP से पब्लिक एक्सेस जो है वो अलाउड हो और बाकी आप डिनाई करें उसको, ठीक है। अच्छा गोफिश की ईवल जिंक्स के साथ इंटीग्रेशन के लिए हमें बहुत ही मिनिमल इसी कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट सिंपली ईवल जिंक्स में आपको 2 लाइंस ऑफ कोड ऐड करना है। इसमें आपको गोफिश का जो URL है, जो पब्लिक IP है, सिंपली वो मेंशन करना है, जिस पोर्ट पे वो लिसन करना है वो मेंशन करना है, और API की आपको चाहिए। API की आप अगर गोफिश जैसे आप इनिशियली सेटअप करते हो, आप अकाउंट सेटिंग्स में हैं तो यहाँ पे API की आपको अवेलेबल होगी, और उसके बाद सिंपली just add issue these two commands from EvilJinx configuration, your EvilJinx and GoFish will be integrated. अच्छा नेक्स्ट इसमें ईमेल में ईमेल बेसिकली फिशिंग ईमेल को डिज़ाइन करने में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको मोस्टली HTML बेस्ड ईमेल्स यूज़ होती है। अगर आप रिकॉल करें, मैंने उसमें स्टार्ट में बताया था कि जो डिफरेंट फिशिंग कॉन्टेक्ट्स और प्रीटेक्स्ट आप यू शुड यूज़, या एडवर्सरीज जो यूज़ करते हैं वो फॉर एग्जांपल अवार्ड्स या कूपन्स हैं या सर्वेज हैं, ठीक है। तो अगर आप तो देखो कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक उनको प्रॉपरली एक डिज़ाइन किया जाता है HTML फॉर्मेट में, ठीक है। तो फिशिंग कैंपेन के लिए हमें भी अपने जो टेम्पलेट है एज एन अटैकर, ईमेल टेम्पलेट को उतना ही कन्विंसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो you don't have to be an HTML developer to be honest. There are free tools available, for example Strippo. Strippo फ्री सर्विस है जहाँ पे आप अपने ईमेल टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हो। ये मैं डेमो में एक्सप्लेन भी करूँगा, बहुत सिंपल है यूज़ करने में। और सिंपली उसके बाद क्या होगा कि आप once you design your email template, just have to आपको जो टेक्स्ट है वो डिज़ाइन करना है, जो ग्राफिक्स है वो ऐड करने हैं, ठीक है। और फिशिंग जो URL है, जो हमारे ईवल जिंक्स प्रॉक्सी सर्वर जो लिसन कर रहा है फिशिंग URL, वो फिशिंग URL हमें इसमें ऐड करना है। सिंपली नेक्स्ट स्टेज में उसको हमें एक्सपोर्ट करना है शिपो से एज HTML, और उसको हमने गोफिश में एज अ टेम्पलेट ऐड कर देना। तो बेसिकली स्ट्रिपो को यूज़ करेंगे हम अपने जो ईमेल है उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे एज HTML, और गोफिश में न्यू ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे HTML कोड को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल सर्वे का सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, प्री टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, तो योर ईमेल शुड बी फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और उसका सब्जेक्ट भी थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कि वो इट शुड लुक लाइक रियलिस्टिक, तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है जी। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट डेमो कि ईमेल टेम्पलेट स्टिपो में हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद गोफिश में कैसे हमने ईमेल टेम्पलेट को ऐड करना है।
फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्री टेक्स्ट है सर्वे का, ठीक है। सिंपली ये टेक्स्ट आप इसको वंस यू हैव डिजाइन योर प्री टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिपो पे लॉगिन करें। ये फ्री अकाउंट अगेन, इट इज़ नॉट आई एम नॉट यूजिंग एनी पेड सर्विस। आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है स्ट्रिपो में। आप एक एम्प्टी टेम्पलेट को भी स्टार्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास HTML कोड है, HTML कोड आप उसके टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, या इसके कुछ बिल्ट इन मास्टर टेम्पलेट्स है वो भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो विल गो विद सिंपली फॉर एग्जांपल एम्प्टी टेम्पलेट। यहाँ पे लेट से कि हम ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है, जो हमारा प्री टेक्स्ट है। सिंपली आई कॉपी द प्री टेक्स्ट। अब इसको यहाँ पे आप ट्वीक कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड है। सो इट शुड बी कन्विंसिंग। अगेन टारगेट ये है कि आपकी जो ईमेल है शुड बी कन्विंसिंग। ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफिक्स ऐड करने हैं, कोई लोगोज ऐड करने हैं, तो सिंपली वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। और इन दिस एग्जांपल मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो फिशिंग लिंक है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक हेयर। यहाँ पे सिंपली मैं एक हाइपर लिंक इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। और ये हमारा फिशिंग लिंक, फिशिंग जो जो URL है वो इसमें यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो उसके बाद क्या करना है कि आप प्रीव्यू कर सकते हो कि आपकी ईमेल किस तरह की, हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। अगर इसमें कोई फर्दर ट्वीक करना है, कोई डिज़ाइन ऐड करना है, तो वो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो वंस यू आर सेटिस्फाइड, सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, आई थिंक वो क्योंकि मेरा फ्री प्लान है, तो इसमें मैंने टेस्टिंग में काफ़ी सारी वो ट्राइज में ऑलरेडी इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। बट आई गिव एन एग्जांपल। आपके पास सिंपली आप एक्सपोर्ट में जाओगे, यहाँ से आपको HTML कोड, ये जो अभी डिसेबल्ड है ये ऑप्शन, बट ये ऑप्शन होगी, यहाँ से आपने HTML कोड को कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है गोफिश पे, न्यू ईमेल टेम्पलेट ऐड करना है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास वो HTML कोड नहीं है बहरहाल, सिंपली आप क्या करोगे कि टेम्पलेट ऐड करोगे, और यहाँ पे आके HTML में आप उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है इसके लिए। तो ये मेरा HTML का कोड है जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है स्ट्रिपो से, ठीक है। तो सिंपली ये HTML कोड आपने यहाँ पे आके इसको कॉपी कर देना है और अपने टेम्पलेट को सेव कर देना है। दैट्स इट। अच्छा, लेट मी सी इसमें डेमो और क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एक तो इसका मेथड टेम्पलेट ऐड करने का ये कि आप टेक्स्ट को खुद से पहले टेक्स्ट राइट करो और उसके बाद उसको स्ट्रिपो में इंपोर्ट करो। अदरवाइज ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सैम्पल ईमेल है, जैसे बहुत सारी फिशिंग ईमेल्स आपको भी आती होंगी, ठीक है। वो सैम्पल ईमेल सिंपली आपने क्या करना है, उसको सेव करना है। सेव करके और सैम्पल ईमेल को आप ओपन करें अगर उसमें नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। तो इसका जो HTML कोड होगा, वो HTML कोड आपने इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद टेम्पलेट में इसको ऐड कर लेना है, ठीक है।
ठीक है जी, ये एक बेसिक एक डेमो था कि किस तरह से आप अटैकर्स किस तरह से ईमेल टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है सेक्शन वो ये कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आप एज एडवर्सरीज कभी भी अपने या एज अ रेड टीमर आप अपने डायरेक्टली ईमेल कैंपेन को लॉन्च नहीं करोगे विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन या टारगेट ईमेल एड्रेस जो है उस पर कभी भी डायरेक्टली ईमेल सेंड नहीं करनी। पहले इसको देर आर सम फ्री सर्विसेज अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल मेल ट्रैप, जहाँ पे आप जाके ये देख सकते हो कि आपकी ईमेल जो है वो हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, और उसमें वो फॉर एग्जांपल जो आपकी डोमेन है, लेट्स से वो डोमेन कहीं पे ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, जो उसकी रेपुटेशन क्या है। ठीक है, और उसमें कोई ऐसे क्योंकि हम HTML टेम्पलेट यूज़ करते हैं, कोई ऐसा HTML के कोई टैग्स तो नहीं है जो कि विच आर मार्क्ड एज सस्पिशियस और मलिशियस, जिसकी वजह से हमारी ईमेल जो है वो ब्लॉक हो गई। तो ठीक है, तो मेल ट्रैप फ्री सर्विस है। आपको बाय डिफॉल्ट एक सैंडबॉक्स का ईमेल अकाउंट मिलता है, इसको वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट। ठीक है, आप जस्ट इसमें फ्री अकाउंट रजिस्टर क्रिएट करें, आपको SMTP क्रेडेंशियल्स मिलेंगे फ्री अकाउंट के। ठीक है, वो SMTP क्रेडेंशियल्स आपने अपने ईमेल प्रोफाइल में गोफिश में डिफाइन करने हैं और इसको ईमेल को आप टेस्ट कर सकते हो। ये इसकी एग्जांपल है SMTP प्रोफाइल की। इसमें जस्ट एक ही पॉइंट है कि आपने पोर्ट 2525 यूज़ करनी है, क्योंकि मेल ट्रैप जो है वो जस्ट आपको पोर्ट 2525 पे इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वंस यू क्रिएट योर प्रोफाइल, नेक्स्ट स्टेप आपने कैंपेन लॉन्च करनी है, कैंपेन क्रिएट करनी है, लॉन्च करनी है, वो भी इसका हम आगे टाइम। ठीक है, तो वंस यू सेंड योर टेस्ट ईमेल, तो उसमें फिर ये है कि आपको फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनशॉट है मेल ट्रैप का। यहाँ पे आपको वो स्पैम एनालिसिस का स्कोर आपको प्रोवाइड करेगा मेल ट्रैप। इस केस में जो ये कुछ पब्लिक जो मॉनिटरिंग की जो जो स्पैम को फॉर एग्जांपल जो डोमेन्स हैं उनको मॉनिटर करती हैं, जो सर्विसेज वहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दिस केस कहीं पे भी हमारी डोमेन लिस्टेड है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो डोमेन है, जो जहाँ से ईमेल जा रही है, वो किसी भी ब्लैक लिस्ट में एडेड नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो HTML स्कोर है इन दिस केस आप देख सकते हो कि 24 उसमें डिफरेंट ऐसे कैरेक्टर्स हैं, HTML टैग्स हैं जो कि इसने आइडेंटिफाई किए। तो बेसिकली क्या होगा कि इसका पर्पज़ ये है कि आपको अपनी जो टेम्पलेट है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आप बेसिकली इसको एक्चुअल टारगेट को सेंड करने से पहले आप मेल ट्रैप या किसी भी सिमिलर सर्विस पे उसको टेस्ट कर रहे हो कि आपकी ईमेल सक्सेसफुली लॉन्च कर सके। आई थिंक ओके। अच्छा, ये मेल ट्रैप का डेमो है, मैं इसको कंबाइन कर दूंगा नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअल डेमो होगा उसके साथ, तो वी हैव टू मैनेज टाइम एज वेल। ठीक है, मेल गन, अब इस डेमो के लिए मैं मेल गन यूज़ करूँगा, बट आप यू कैन चूज एनी फ्री सर्विस, मेल गन और SendGrid और एनी अदर पॉपुलर ईमेल सर्विस। तो अगेन दिस सर्विस कैन बी, इसका फ्री वर्जन भी है जो कि लिमिटेड है ऑल दो, बट स्टिल इट अलाउज यू टू सेंड 5000 ईमेल। लेकिन उसमें मेल गन में जो फ्री वर्जन है उसमें जो टारगेट ईमेल एड्रेस है उसकी एक लिमिटेशन है। सो लेकिन जो इसकी सब्सक्रिप्शन है, पेड सब्सक्रिप्शन भी है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो इट इज़ रिकमेंडेड एक्चुअली कि आप उसको जो है वो पेड वर्जन इस चीज़ के लिए यूज़ करें। सो मेल गन में सिंपली वंस यू क्रिएट योर अकाउंट, आपने अपनी डोमेन को उसमें कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद जो आपकी डोमेन के से रिलेटेड जो MX रिकॉर्ड होंगे, TXT रिकॉर्ड होंगे जो कि ईमेल सर्विस के लिए यूज होते हैं, वो आपको डिफाइन करने हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वंस यू आर डन विद योर ऑनबोर्डिंग योर डोमेन, उसके बाद मेल गन विल प्रोवाइड यू SMTP क्रेडेंशियल्स। तो ये सेम जैसे मेल ट्रैप में था, वो SMTP क्रेडेंशियल्स आपने डिफाइन करने हैं सेंडिंग प्रोफाइल में इन गोफिश टू इंटीग्रेट गोफिश विद दिस ईमेल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपली आपको
SMTP जो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मेल गन प्रोवाइड करेगा वो आपने सेंडिंग प्रोफाइल में यहाँ पे डिफाइन करना है। वंस यू डिफाइन योर सेंडिंग प्रोफाइल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने सिंपली कैंपेन लॉन्च करनी है, क्रिएट न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है, उसमें जो ईमेल टेम्पलेट है वो डिफाइन करना है, सेंडिंग प्रोफाइल है वो डिफाइन करना है, और उसके साथ जो हमारा फिशिंग का जो फिशिंग यूआरएल है वो सिंपली डिफाइन करेंगे, और टारगेट ग्रुप्स या टारगेट यूजर आपको उनकी ईमेल आईडीज डिफाइन करने होंगे, सिंपली कैंपेन को लॉन्च करना है, दैट्स इट। ठीक है, अभी हम मेन डेमो इसका देखते हैं। अभी जो बहुत सारे कंपोनेंट्स इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के वी हैव सीन, ईवल जिंक्स कैसे सेटअप करना है, अपाची है उसमें क्या चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, ठीक है, फिर ईमेल सर्विसेज है, गोफिश है। अब ये सारे कंपोनेंट्स इस डेमो में देखेंगे कलेक्टिवली, इन सब की इंटीग्रेशन के बाद कैसे ये फिशिंग कैंपेन आपकी फिशिंग कैंपेन आप लॉन्च कर सकते हो। तो डेमो सेटअप में बेसिकली मैंने दो डोमेन्स रजिस्टर की हुई है। टारगेट डोमेन है trustedcloud365.com। इस पे फॉर एग्जांपल एक सिंपली ऑफिस 365 की ईमेल सर्विस रन कर रही है, ये टारगेट है। और जो अटैकर है, अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डोमेन रजिस्टर की है उसमें .com की जगह मैंने .cloud यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये डोमेन रजिस्टर की हुई है। ईमेल सर्विस इसमें मेल गन यूज़ हो रही है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सर्वे है, ठीक है। इसमें बेसिकली टारगेट को ये कन्विंस किया गया कि जो प्रीटेक्स है वो ये इसका प्रीटेक्स है कि आप ये सर्वे एचआर की तरफ से सर्वे है, इस सर्वे आपको फिल आउट करना है, लेकिन इस सर्वे को फिल आउट करने से ये सर्वे सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो टू एक्सेस द सर्वे you have to first log into your email account which is Office 365. So this is just an example मैं जो इस डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ। योर कॉन्टेक्स्ट एंड प्रीटेक्स्ट एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट होगा उतना ही चांसेस आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी कि विक्टिम विल फॉल टू दिस अटैक, और वो आपके फिशिंग लिंक पे क्लिक करेगा। तो इसका सिंपली फ्लो इस डेमो एनवायरनमेंट का सेम ये है कि ईवल जिंक्स सेटअप किया हुआ है AWS में, सिंपल एक VM है, और ईवल जिंक्स इज रनिंग बिहाइंड अपाची सर्वर, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू इंटरनेट। और अपाची सर्वर जो है वो इट इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू क्लाउडफ्लेयर। तो ईमेल सेंड करेंगे यूजिंग गोफिश, ठीक है। गोफिश इज कनेक्टेड विद मेलगन, और यूजिंग मेलगन गोफिश ईमेल जो है वो सेंड करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसका वर्क फ्लो सिंपली उसी तरह के जैसे विक्टिम क्लिक करेगा यूआरएल पे, और उसके बाद ऑफिस 365 का लॉगिन पेज आ जाएगा, और वहाँ से जैसे ये विक्टिम जो है वो क्रेडेंशियल एंटर करेगा, MFA स्क्रीन आएगी, MFA एक्सेप्ट करेगा, तो जो सेशन कुकीज हैं वो ईवल जिंक सर्वर पे सेशन कुकीज कैप्चर हो जाएंगे, और एज अटैकर वी विल ग्रैब द क्रेडेंशियल्स एंड सेशन कुकीज, ठीक है। इसको लेट्स जंप इनटू द डेमो। So basically I have already added the mail trap and mailgun profiles है, ठीक है। Let me just quickly show you. तो मेल ट्रैप के जो SMTP क्रेडेंशियल्स है, सिंपली आपने आना है सेंडिंग प्रोफाइल्स में, प्रोफाइल क्रिएट करना है, जो SMTP क्रेडेंशियल्स है वो आपने ऐड करने हैं और पोर्ट डिफाइन कर देनी है। और इसी तरह जो मेल गन है उसके SMTP क्रेडेंशियल्स जो सर्विस के वो आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। और फ्रॉम एड्रेस जो है, अगेन एज आई सेड के फ्रॉम एड्रेस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिव होना पड़ेगा कि ईमेल आपकी जो है वो कन्विंसिंग हो के जो विक्टिम है उसको फिशिंग लिंक को क्लिक करे और क्रेडेंशियल्स इसमें एंटर करें। सो वी विल सिंपली गो टू कैंपेन्स,
फर्स्ट आई विल शो यू मेल ट्रैप के साथ, उसके बाद मेल गन के साथ. लेट्स मेक अच्छा, मीनवाइल साइड विंडो पे आई विल आल्सो डिस्प्ले माय evil jinx server. So simply you will provide a name to the campaign. ईमेल टेम्पलेट जो ऑलरेडी हमने स्ट्रिपो से डिज़ाइन किया है वो टेम्पलेट आपने डिफाइन करना है, सेलेक्ट करना है. जो आपका फिशिंग यूआरएल है, ठीक है, फिशिंग यूआरएल एज ए सेट के आपने उसको कॉन्फ़िगर किया होगा ऑलरेडी ईवल जिंक्स में. दिस इज माय फिशिंग यूआरएल जो login.trustedcloud365.cloud, ठीक है. तो ये फिशिंग यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर दोगे. सेंडिंग प्रोफाइल, लेट्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट सी मेल ट्रैप में, मेल ट्रैप में ईमेल कैसी है, और उसके बाद टारगेट यूजर डिफाइन कर. मेल ट्रैप के लिए आपको एक्चुअल टारगेट यूज डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी रैंडम उसमें टारगेट दे सकते हो. ठीक है, फिशिंग ईमेल यहाँ से सेंड होगी. Let's wait for a minute. While we are waiting, let me also meanwhile send email to the actual victim. Let me first give it a name. So we victim has configured Outlook. Okay, as soon as victim receives the email, let's say anyhow. So victim receives the email. Okay, उसके बाद victim clicks on the phishing link. Let me set up this in parallel. ठीक है, victim. अच्छा, now you can see कि जो phishing URL है, it is login.trustedcloud.365.cloud. ठीक है, but actually it is proxying the traffic between this browser window and Office 365, the login page. So we are, as a victim, we are actually seeing the Office 365 login page. So it looks like legitimate to the actual victim. और इस पे domain जो certificate is also configured. ये Google Trust Services का certificate आपको यहाँ पे शो होगा. ये बेसिकली क्लाउड सर्टिफिकेट मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, ऑन दी evil jinx साइट जैसी लिंक पे आप जो विक्टिम है वो क्लिक करेगा, सो इन लॉग्स वी विल सी कि न्यू विजिटर हैज अराइव्ड. लेट्स एंटर द क्रेडेंशियल्स बिकॉज एज विक्टिम वी आर थिंकिंग कि ये एक्चुअल ईमेल है, एक्चुअल जो है वो ऑफिस 365 का लॉगिन पेज.
the password. ठीक है, तो as soon as the victim enters the password will be captured by credentials will be captured by email checks. So I will just accept the MFA request. ठीक है, so as soon as the authentication is done, victim will be redirected to the survey page. So very simple, very convincing and very simple campaign. So after that, victim will simply fill out the survey and close the window. But by this time, we have the victim credentials plus the session cookies. So let me show you the session. So this is the session that we have recently captured, the 49 one. So we will have the session cookie. Just copy the session cookie. Now we will actually log in with this session cookie, right? We will not be using the credentials because we don't have the MFA. So we will just log in with the session cookie, and that's all it requires. So I'm using this simple utility. I added this cookie. I'll import the session cookie here. So once this is done, simply go to the office.com. And we are logged in with victim's account, and we can now access, for example, all the available services like Outlook and SharePoint. That's it. So this is the actual targets inbox that we have managed to access with the session cookie. And one point I want to mention here, जो session cookie है, usually session cookies to Office 365 के they are valid for somewhere between 1 to 2 months. So they have pretty long session expiry time. ठीक है, इसलिए as a security professional, when you are doing application security testing, this control is enforced. Session cookies should be valid for a short time period. But in this case, since session cookie is valid for quite some time, so you can, as an attacker, once we have the session cookie, we can repeatedly log into the victim account and access the account using same session cookie. उसके बाद अगर victim log in करता है अपने routine में अपना email account use करता है, it will generate new session cookies, but our session cookie that we have already captured is valid for the for example 1 month or 2 months, whatever time period is set up session expiration. So let me also see, for some reason I don't know why email did not land to Mailtrap service, but anyhow will not go into that due to shortage of time. ठीक है, now last section of this presentation, detection and mitigation. So एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो Office 365 जो victim पे configure किया है, ये Office 365 is configured with standard of the Office 365 की anti-spam और email security की जो
policies हैं, standard policies are configured. ठीक. Now AITM, जो adversary in the middle attack is actually focused on credential stealing by bypassing the MFA. Okay, so MFA, I would not say कि MFA की कोई importance नहीं in this case. This is what I mean. MFA still will protect against multiple other attacks. For example, brute force की example है. But we have to complement the MFA and make it phishing resistant, so that we can protect our services against the these kind of attacks. So the first point is we should make our MFA implementation phish resistant. उसके लिए क्या है कि जी there is an industry alliance known as FIDO, which promotes passwordless authentication. ठीक है, तो FIDO की जो implementation in case of Windows, it is called Windows Hello for Business. So basically, once if you are using FIDO in case of Windows Hello for Business, so you are not actually using the credentials to log in, but actually instead of credentials, you are enrolling your device, and in the enrollment process, the device will receive cryptographic keys, or using those cryptographic keys, you will log into your account. So this is FIDO is one control that we can use to make our MFA implementation phish resistant. Secondly, Office 365 के केस में, because this demo was around Office 365. So Office 365 के केस में there are some additional policies that we can use. उसमें जो popular examples हैं, जो सबसे ज़्यादा useful examples हैं कि conditional access की policies इसमें enable करें. So for example, कि एक attacker आपकी session cookies जो है वो steal कर रहा था, but that attacker is actually residing in, let's say, USA or any other country. A victim is in Pakistan. So you can control access to the email accounts. आप define कर सकते हैं using access control policies. Only certain IP ranges, for example, the countries, the regional IP ranges are allowed to access the email account. ठीक है. Another example, IP range restriction, it is going to be a bit challenging, but another very effective control is to use to enable compliant device policies. So with compliant devices, you basically आप kind of MDM sort of जैसे use कर रहे MDM, you enroll your devices and only those devices are allowed to log in. So sure. So basically, even if the attacker is able to grab the credentials, attacker will not be able to log into the account using those and using the session cookies. Next, in addition to this we have, there are some commercial tools also available. I'll not go into too much detail of these solutions, but you can explore. There are Zolder.io, Push Security. They have some products which are specifically designed to tackle with AITM phishing attacks. Microsoft itself has some controls. Okay? For example, Microsoft 365 Defender. We have Defender for Office 365, Defender for Cloud Apps, and Azure Identity Products. These are some additional, but obviously these are paid services. These are not free. In open source, what our options are? There is a website known as Did Someone Clone Me? So from detection point of view, we can use this service. It is very similar to Canary tokens. So basically, Canary token app, and once you, for example, you provide your domain that you want to protect from AITM phishing, for example, man in the middle attacks. आप domain इसमें add करते हो,
ठीक है, और it will give you a JavaScript. That JavaScript code contains that the token, और उसको आप अपनी वेबसाइट में embed कर देते हो. So now what happens के जो भी रिक्वेस्ट उस टारगेट वेबसाइट पे जाएगी, जब वो कोई भी क्लाइंट ब्राउजर उसको एक्सेस करेगा, तो रिक्वेस्ट विल आल्सो गो टू द बैकएंड ऑफ द DSM सर्विस. वहाँ पे वो उसको एनालाइज करेंगे कि ये रिक्वेस्ट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लेजिटिमेट डोमेन और फिशिंग डोमेन. ठीक है, और if it is coming from it is not coming from the phishing domain, you will receive actually I'll actually show you. You will receive this email notification that someone has cloned your website. So it is not actually preventing this attack, this service. So it's just only for detection. Very simple to integrate with popular services. You just provide your domain name and email address where the notification should receive. उसके बाद आपके पास simple एक one line code होगा JavaScript का that you can embed in your, for example, image source में या XML format में, ठीक है, XML tag में या image tag में, या उसको as external script भी आप उसको लोड करवा सकते हो. तो जो पॉपुलर सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस 365 हो गया, ऑक्टा हो गया, वर्डप्रेस, इनके साथ डिफॉल्ट इसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है. बट wherever this integration is not available, you can just simply embed this JavaScript code into your website. So if you have in-house developed application, embedding the JavaScript code is very straightforward. But in case of Office 365, since it is not a custom application, so how we can utilize this service and how we can embed the JavaScript code. Simply Office 365 में आपको एक फीचर अवेलेबल है कि कस्टमाइज योर ब्रांड, योर ब्रांडिंग, जो लॉगिन पेजेस हो आप कस्टमाइज कर सकते हो. ठीक है, तो इस फीचर को यूज करके हम ये जावास्क्रिप्ट जो सिंपल कोड है वो एम्बेड कर सकते हैं इसमें. सिंपली व्हाट वी नीड के एक CSS फाइल, बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन टू कस्टमाइज the branding page and upload a custom CSS file. So basically what we will do, we will insert that JavaScript code inside a CSS file. ठीक है, वो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे in the default sign in experience, ये जो ऑप्शन यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद that's it. उसके बाद अगर आपकी Office 365 जो डोमेन है वो अगर उसमें फिशिंग अटैक, AITM वाला फिशिंग अटैक मतलब उसको टारगेट करता है, तो you will receive the notification. Very simple. I have tested it. I'm not going to conduct a demo due to shortage of time, but I would encourage कि आप इसको configure करें if you are using Office 365 और इसको टेस्ट करें. Last slide. ठीक है, ये एग्जांपल इसमें जो डेमो में एग्जांपल यूज की थी Office 365 की है. बट practically any service with login page can become a target of AITM phishing attacks. ठीक है, किसी भी सर्विस को अटैकर टारगेट कर सकते हैं. एंड आई हैव इन माय एक्सपीरियंस में मैंने इस तरह के इंसिडेंट्स डील किए हैं जिसमें आपकी जो कस्टम in-house applications हैं, if they are exposed to internet, they are targeted by attackers. So how we can prevent, how we can mitigate these attacks for जो हमारी in-house developed applications हैं, इसके लिए very simple एक टेक्निक है. there is a JavaScript object called windows.location or document.location. Any of the object will serve the purpose. If you simply go to your website, उसमें कंसोल पेज में जाएं, जो टारगेट वेबसाइट उसको ब्राउज करें, कंसोल पेज में है. ये आप अगर ऑब्जेक्ट को उसमें इंटर करें तो आपको इसका एक पैरामीटर होगा, होस्ट का पैरामीटर. होस्ट पैरामीटर विल ऑलवेज कंटेन वैल्यू ऑफ द URL. जो डोमेन होस्ट पैरामीटर में आएगी, it will always be the value, the domain name which is in the URL. ठीक है, and
और इसको स्पूफ नहीं किया जा सकता. So we can simply use a very small JavaScript code जो कि आप अपनी वेबसाइट पे इसको एम्बेड कर सकते हो. लॉगिन पेज पे इसकी वेरी सिंपल लॉजिक होगी कि अगर इस ऑब्जेक्ट में जो होस्ट के पैरामीटर है उसमें जो वैल्यू है आपकी एक्चुअल डोमेन की है, ठीक है, तो लॉगिन जो फंक्शनलिटी उसको इनेबल करें. अदरवाइज अगर उसमें जो वैल्यू है आपकी एक्चुअल डोमेन की नहीं आ रही, so that means someone is actually using man in the middle attack. तो उस केस में आप लॉगिन की फंक्शनलिटी को इनेबल नहीं करते. So very simple to mitigate in case of custom जो आपकी इन हाउस लेवल एप्लीकेशन होती है. Thank you very much. So that's it. I know I have taken a lot of time, more than 1 hour and 30 minutes, but I hope you have learned a couple of things. Thank you very much, Nadeem. बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, very informative, and we are open for the question and answer session. सबसे पहले नदीम कुछ चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, वो मैं देख लेता हूँ. शुमाइला पूछ रही है, what is the role of Office 365 behavioral analytics here? शुमाइला थोड़ा सा अगर आप इसको elaborate कर दें. अगर हाँ elaborate कर लें, just raise your hand तो हम आपके माइक unmute करेंगे. जी. Actually, thank you so much for the session, Nadeem. It was a very informative session. But I think I got the answer to my question soon after you were explaining about कि जो condition based access का जो module है, which is like a kind of a behavioral analytics part of the Office 365, उसको एक्चुअली यूज किया जा सकता है टू मेक श्योर जो भी सेशंस आ रहे हैं, एक्टिव सेशंस आ रहे हैं, वो उसी यूजर की फील्ड से आ रहे हो. सो मेरा भी यही पॉइंट था कि अगर सेशन हाईजैक हो भी जाता है तो नॉर्मली हम लोगों ने रिस्क बेस्ड या कंडीशनल बेस्ड एक्सेस भी रखी हुई होती है, जिसमें वो कंटिन्यूसली बता रहा था कि यूजर कहाँ से लॉग इन हो रहा है ना, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस 365. So my answer was there in your slide, so I got it soon after I raised the query. Normally, let me add here कि normally I have seen कि organization जो है वो conditional based access policies को utilize नहीं करती. So I would encourage कि this is a free feature, and if you are using Office 365, so you should make use of the conditional access policies. It is very effective in dealing with these kind of attacks. जी Asad, just unmute your mic. आप सवाल कर लीजिए. Jay, thank you very much, Nadeem. It was really an amazing session. I think all the security professionals, those who are working, or even the students, they would benefit from this session. So I have one question. So what's the difference between token-based authentication means? You mentioned somewhere that, cookies can be hijacked or tokens. So does this resilient infrastructure works for both? For hijacking the cookies or hijacking the tokens? If you can just elaborate a little bit. Sure, Asad. So session token and session cookies are actually the same thing. Because Okay. once you successfully log into to a website, the web Right. server will actually send, after successful authentication, it will send session cookies, which is called session token as well. So it will send session cookies to the browser, to the client from where you are accessing and authenticating. And also, So does it work for all type of multi-factor authentications? This kind of attacks, whether it's yes, yeah, whether it is push notification or if it is OTP. In case of OTP, it is again because the victim will actually see the actual website. Okay? So where the victim is providing credentials himself or herself. Okay? So if the target website is using in the example that I showed, in that example I configured push notification. I'm not sure, but I think in case of Office 365, by default it is push notification. So in case of push notification, or in case of OTP, if the target website is using OTP, the victim, after inserting the credentials, will also add the OTP token in the next step.
Right. And in that case, we will also grab the OTP token because it will be Right. passing through the proxy server. Right. Okay. Thank you. And one last question. What is the role of applications like Devo, for example, is being used for, multi-factor authentication where you have an app and it It- gives you a code or push kind of notification? Yeah. It does not matter actually whichever MFA solution you use. This technique is effective against bypassing all the. So it does not matter actually. Right. Thank you very much. So we have one question from Syed Muhammad Hasnan. Yes, Hassan. अस्सलाम वालेकुम सर So, सर मेरा क्वेश्चन करंट वेबिनार के सेशन से रेलेवेंट है बट रिसेंटली माय वन ऑफ माय कोलीग वाज फेसिंग ransomware attack where his all the data of his college was encrypted with .qual extension. How to mitigate these kinds of attack and how to practice ransomware attacks in virtual environment. अच्छा ये टोटली ऑफ टॉपिक हो जाएगा and mitigating ransomware Just a attack brief. will itself एक long एक discussion है. अगर आपको मतलब हाई लेवल पे इसको चाहिए फॉर एग्जांपल टू हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, आपको यू हैव टू हैव सम सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन योर एंड पॉइंट्स. ठीक है, एंड पॉइंट पे यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी सोल्यूशन जो कि रैंसमवेयर के अटैक्स जो रैंसमवेयर है उसको प्रोटेक्ट कर सके एट आई मीन वेरी बेसिक लेवल. आपको देन देयर आर ऑब्वियसली यू नीड लॉट ऑफ अदर कंट्रोल्स के रैंसमवेयर अटैक आया कैसे आपकी इन्वायरमेंट में, वेदर वन ऑफ योर एक्सटर्नल सर्विसेज was compromised or it landed through phishing email again. So there will be in either scenario there will be different controls. Okay, there is no single control that you can rely on to protect against ransomware, but at least you have to have some kind of protections by using some security solution on your endpoints. Okay, there are several products, EDR products, which are actually very effective against detecting and mitigating ransomware. Thank you so much, sir. Any other question? Yeah, we have a question from Gaur Naseem. Please, Gaur, unmute your mic and ask your question. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली जैसे कि हम आपको पता है हम पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं. आपने कहा भी सर कि बेसिकली कुकीज बेसिकली हाईजैक हो गई है ना, तो बेसिकली इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो दो कुकीज के फ्लैग्स लगे होते हैं सिक्योर और HTTP ओनली, ये बेसिकली क्या पर्पस पे करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये फ्लैग्स भी इनेबल्ड हो तो वो क्या पर्पस फिर भी बेसिकली होगा कि कुकीज हाईजैक हो जाएंगी और ये काम हो जाएगा? देखिए उसकी रीज़न ये है गोहर, उसकी रीज़न ये है कि विक्टिम जो है वो विक्टिम को एक्चुअल वेबसाइट जो है वो जो है ना वो नज़र आ रही है. ठीक है, इसमें इस अटैक टाइप में आप वेबसाइट को क्लोन नहीं कर रहे, टारगेट वेबसाइट को. जो प्रॉक्सी सर्वर है जैसे EvilJinx इन दिस केस, प्रॉक्सी सर्वर प्रॉक्सी कह रहा है कंप्लीट HTTP ट्रैफिक को. ठीक है, आपके क्लाइंट ब्राउजर और जो टारगेट वेबसाइट है. सो विक्टिम और जो विक्टिम है इज नॉट ऑथेंटिकेटेड अगेंस्ट द फेक डोमेन या क्लोन डोमेन के अगेंस्ट उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा. विक्टिम इज ऑथेंटिकेटिंग अगेंस्ट लेजिटिमेट साइट. ठीक है, और एंड विक्टिम इज कंप्लीटिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. जब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली the website to be target web service है, after completing the authentication process it will send the cookies session token to the browser, right? So इस केस में ये मैटर नहीं करता. We have question from Fazia Khan. Fazia, please unmute कर लीजिए अपना mic.
जी am I audible, sir? यस वैसे जी बिल्कुल। सर हमारे पास जिस तरह इसकी मिटिगेशन में आपने एक बात बताई थी कि हमारे पास सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होती है कि जो जो भी ईमेल्स आ रही हैं या जो भी थ्रेड्स आ रहे हैं या कोई भी आपके पास वेक्टर जनरेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने में या एक किस्म की आप कह सके कि ये बताने में कि ठीक है ये जो स्पैम ईमेल है ये स्पैम वेबसाइट है या कोई फिशिंग ईमेल है या फिशिंग वेबसाइट है जहां हम रजिस्टर करा सकें कि अगर हमें कोई चीज़ ये फेस किया हमने देखी है कि ये ईमेल या ये वेबसाइट कोई मलिशियस वेबसाइट है रिसेंटली पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के नेम के यूज़ करते हुए एक लिंक जनरेट किया गया फिर उसकी ये बहुत बड़ा स्कैम था तो द थिंग इज दैट इस तरह के अगर कोई स्कैम्स हम फेस करें और हम इसको रिपोर्ट करना चाहें तो कैसे उसका कोई प्रोसीजर है? नदीम इसका मैं आप इजाज़त दें तो आंसर दूं। इसमें ये है कि आप पी के सर्ट को नेशनल सर्ट जो है हमारा इदारा उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अभी मैंने एक ईमेल एड्रेस शेयर किया है आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिए मैं आपको तमाम डिटेल्स दे दूंगा। उसमें हम आपको ये भी गाइड कर देंगे कि FIA को किस तरीके से आप साइबर क्राइम के अगेंस्ट आप रिपोर्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें और नेशनल सर्ट को भी किस किस एरिया में आप एड्रेस कर सकते हैं तो आपको तमाम तर चीजें एडवाइजरीज में आपको पुश कर दूंगा डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम जुबैद खलील साहब। जुबैद प्लीज अनम्यूट योर माइक आप सवाल पूछिए प्लीज। Hello, Assalamu alaikum everyone. Okay, am I audible? जी बिल्कुल बिल्कुल जुबैद आप सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। Okay, I've joined the late session according to my time zone. Sorry for that. I just want to ask if you are explaining only the email phishing or voice phishing as well. ओके I was not able to unmute. So, Zubair, this session was only about email phishing. Because I did not cover voice phishing or the other topics. Okay, and Yeah. okay, can you please tell me one thing regarding अगर क्योंकि most of organization में social media block नहीं होता उनके personal computers पे तो how can organizations protect against phishing attacks on social media? Good question, Zubair. अच्छा देखें, as I said कि so this type of attack can be, I mean, any service can be target of this attack. Either it is LinkedIn or other social media platform. Employees we use करते हैं और usually these services are not blocked in enterprise network. ठीक है, वो depend करता है policies पे और your custom in-house application जो आपकी corporate applications है, if they are exposed to internet, they can also be target of these attacks. So there is not a single control path. As I'm not sure you you listen to the detection and mitigation section that I was explaining. So there is no single control, but जो भी आपकी जो for example in case of social media platforms है, so there has to be some additional controls के जो MFA है, MFA MFA should be fish resistant. So there are certain requirements to make your MFA service fish resistant. So since we don't have control on the social media platform, ठीक है, तो और उसमें I'm not sure कि जिस तरह Office 365 में आपको login पेज को customize करने की option available है, where you can at least embed your JavaScript code and at least enable some detection. और Office 365 के केस में आपके पास Microsoft की अपनी भी सर्विसेज हैं, Defender है for cloud and for cloud apps for Office 365 उस केस में. But in case of for example LinkedIn और जो इस तरह के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं
there I don't think that we have these kind of options available. So we are mainly relying on user awareness. So attackers, they will try to use जो ऐसे scenarios है ना जो कि बहुत commonly use होते हैं, जैसे I gave examples of surveys, code of conduct आ गया, उसमें coupons आ गए, बहुत ज़्यादा frequent जो emails आती हैं organization में, different जो emails use होती हैं, इसी तरह की services को इसी तरह के contacts और pretext attackers भी use करें, ठीक है, to make it more convincing. So there is in case of social media, the only option we have कि हम अपने users को ज़्यादा से ज़्यादा educate करें, मतलब simple जो user awareness training is not enough for sure. तो जो employees हैं, जो end users हैं, उनके लिए customize awareness trainings design करनी पड़ेंगी as per the for example latest जो भी attackers जो भी जिस तरह के जो भी tactics use करते हैं, तो that is the option I think in my opinion we have against जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अगेंस्ट इस तरह के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट या उसके अगेंस्ट इनेबलमेंट के लिए. Thank you very much. I'm just asking this question because most of our organizations have because all the maximum you can say that vulnerable people are the heads of the companies. So they are in Pakistan. All of them are not, you can say that all of them, but most of them are from military background or somewhere, and they are just sitting there and doing nothing, and they are more vulnerable to all the companies. So that's why I'm asking about that. They are doing only thing they are doing in using social media or their, social media or their professional laptops or professional phones. That's why. How can you share the awareness session with them? देखें वो तो अगेन के एंटरप्राइजेस को ये ड्राइव जो है एंटरप्राइजेस को ही इनिशिएट करनी पड़ती है कि वो कस्टमाइज जो है वो अवेयरनेस सेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयज़ को इंगेज करें और अवेयरनेस सेशन जो है वो ज़्यादा आई मीन अवेयरनेस सेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है और इन सर्टन केसेस द ओनली ऑप्शन वी हैव इज द अवेयरनेस सेशन. फॉर एग्जांपल जो आपने एग्जांपल दिया, ठीक है, तो ये एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज वेरी करेगा इसकी इफेक्टिवनेस, बट एट द एंड एंटरप्राइजेस को ही इस पे लीड लेनी पड़ेगी और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा against these attacks. I would say that they, as I said in the beginning of the session, that phishing is one of the most popular जो है वो attack vector है, and still it is in 2024 it is very effective. So there is no doubt that user awareness still has and still is an important factor कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना पड़ेगा जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं जो एडवर्सरीज यूज़ करते हैं, तो उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर चॉइस. श्योर नदीम, आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन. हमारे पास कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं. थैंक यू वेरी मच नदीम फॉर द वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन. Thanks for your time, and we will obviously engage you for further sessions as well. And we are confident that the people and participants enjoyed it and found it informative. जो आपने सारी practical knowledge दी आज और live demonstration से बड़ा information मिली लोगों को. तो thank you very much Nadeem once again. बहुत शुक्रिया. And थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने ज्वाइन किया. एंड टिल नेक्स्ट सेशन इजाज़त दीजिए हमें. बाय बाय एंड खुदा हाफिज़. थैंक यू.